Good morning, everyone. This is the last part of chapter number 1, A Working Boy at 8. In the evening, after school was over, I would do the rounds of some student customer, again collecting dues. Then I would meet him so that he could work out the accounts of the day. After attending the school, when his school was over, APJ Abdul Kalam used to do the rounds of some student customer again and collecting dues. Means when his school was over, it was the responsibility of APJ Abdul Kalam to collect the dues from the customers who haven't paid. And after this, he used to help Samsuddin in the work of account. तो कह रहा है कि जब स्कूल ओवर हो जाया करता था उसके बाद जो APJ अब्दुल कलाम थे, जो शमसुद्दीन के कस्टमर थे, जो मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उनसे वह ड्यूज कलेक्ट करने के लिए उनके पास जाता था. एंड आफ्टर फिनिशिंग द वर्क ऑफ कलेक्टिंग द ड्यूज, आफ्टर कलेक्टिंग द ड्यूज को कलेक्ट करने के बाद ही यूज टू हेल्प हिम इन हिज अकाउंट वर्क. और उसके बाद वो जो शमसुद्दीन का जो अकाउंट, डेली का जो अकाउंट वाला काम था, वो उसमें मदद किया करता था. At that time, sitting somewhere near the sea with the breeze blowing in, Jalaluddin or Samsuddin would finally open up the day's paper. And after that, they used to sit near the seashore and they opened the day's paper. और उसके बाद वो लोग समुद्र के किनारे शमसुद्दीन या जलालुद्दीन ये लोग बैठकर जो पेपर रहता था उस दिन का उसको ओपन करते थे. All of us would pour over the Dinaman and all of them started to read the newspaper Dinaman. और सभी लोग वो जो दीनामन न्यूज़पेपर था, जो कि उस एरिया में सबसे फेमस न्यूज़पेपर था, उसको पढ़ने में बिजी हो जाया करते थे. One of them would read aloud the new items and slowly the larger outside world would enter our consciousness. Now, when they started reading the newspaper, they used to get the news of the whole world. Gandhi, Congress Secretary Yura Muslim, their words and appeals would hang in the evening air. Means in the newspaper there would be the news headlines regarding or about Gandhiji, Congress, the World War, the Second World War, Hitler and his party Nazi. तो इन सब के बारे में वो हुआ करते थे, वो पढ़ा करते थे. I would trace the photos and words with my fingers, wondering what it must be like to be out there in the larger world with all of them. And APJ Abdul Kalam, he used to catch the photos. He used to trace the photos and words with his fingers, wondering what it must be like to be out there in a larger world with all of them. और फिर वो जो APJ अब्दुल कलाम या महात्मा गांधी जिनकी फ़ोटो हुआ करती थी, वो क्या करता था, वह अपने हाथों से उनको वह देखा करता और कहता था कि उनके साथ यदि हम वहाँ पे होंगे तो कैसा होगा. Maybe I thought to myself one day I would go to the big cities like Madras, Bombay and Kolkata. Now APJ Abdul Kalam, he was thinking that if he would go to the big cities like Madras, Bombay and Kolkata, what would I say if I ever got to meet people like Gandhiji and Nehru. Means at this time APJ Abdul Kalam, he was imagining that if he would go to the big cities like Madras, Bombay, Kolkata, and if he meet them, then how he would impress them, then how he would introduce himself. तो सोच रहा है कि यदि उन बड़े शहरों में वो महात्मा गांधी और ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन जैसे लोगों से उसको मिलने का मौका मिलेगा. APJ अब्दुल कलाम यदि ऐसे बड़े शहरों में जाएंगे और उनको गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, तो हाउ ही
हाउ ही वुड रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या वह उन लोगों से क्या कहेंगे. बट सच थॉट्स वर सून इंटरप्टेड बाय द कॉल्स ऑफ माई playmates. Means when APJ Abdul Kalam he was absorbed in such type of thinking, at that time his thoughts, his dreams were destroyed by his friends calling. और जब APJ अब्दुल कलाम इस तरह के विचारों में डूबा रहा करते थे तो उसी समय उनके दोस्त उनको क्या करते थे, बुलाया करते थे और जिससे वह डिस्टर्ब हो जाया करते थे. एंड देन फॉर डिनर, आफ्टर दैट ही हैड टू टेक हिज डिनर, उसके बाद उनको अपना डिनर लेना होता था. देयर वॉज होमवर्क टू बी डन एंड इवन एन 8-year-old हैज़ ओनली दैट मच एनर्जी टू स्पेंड एंड ही हैड टू आल्सो कंप्लीट हिज होमवर्क, उनको अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना रहता था. बाय 9 PM आई वुड बी फास्ट अस्लीप. मीन्स APJ अब्दुल कलाम ही यूज टू स्लीप एट 9 o'clock, और जो APJ अब्दुल कलाम थे वो 9 बजे तक सो जाया करते थे. एज द नेक्स्ट डे मोर स्टडीज एंड द लाइफ ऑफ वर्किंग मैन ले इन स्टोर बिकॉज द नेक्स्ट डे ही हैड टू अगेन स्टार्ट हिज लाइफ. मीन्स every न्यू डे इज चैलेंज इटसेल्फ. प्रत्येक दिन अपने आप में क्या होता है, चैलेंज होता है, चुनौती होता है. दिस रूटीन continued for about a year. So this routine continued for about a year. और कह रहा कि ये जो रूटीन था, ये क्रियाकलाप था, ये 1 साल तक ऐसा ही चलता रहा. इन दैट 1 year of running around with the papers I grew taller and browner. और कह रहा कि मैं 1 साल तक वो दौड़ता रहा, लोगों को न्यूज़पेपर डिलीवर करता रहा, तो उसमें काफ़ी बड़ा भी हो गया था, मैच्योर भी हो गया था. I also learned that I could now judge quite accurately the distance. Means APJ Abdul Kalam he was so wise that he could now judge the distance very accurately. अब APJ अब्दुल कलाम इतने समझदार हो चुके थे, या 1 साल से वो न्यूज़पेपर ही डिलीवर कर रहे थे, तो उनको इस बात का अनुमान हो गया था कि कहाँ पे जाने पे उसकी डिस्टेंस कितनी, दूरी कितनी, कितना समय लगेगा. I could cover at a sprint with a bundle of papers in my hand and hence could time my arrival at various localities at the same time every day. Means APJ Abdul Kalam he was very punctual. He was very punctual means a person who always do his work on time. ऐसा व्यक्ति जो समय पे काम करे उसी को हम क्या कहते हैं, पंचुअल. तो APJ Abdul Kalam he was very punctual. So I could calculate in my head the amount owed to Shamsuddin by each of his subscribers. Means APJ Abdul Kalam he used to calculate the amount of Shamsuddin's subscriber in his head, in his memory, and I could reel off the names of those who had not paid up that day, and he used to recall the name of those subscribers who hadn't paid the amount of न्यूज़पेपर. और वो उन लोगों का नाम भी बोल उनको पता था कि भाई आपने आज के न्यूज़पेपर का पैसा या अमाउंट नहीं दिया. मोस्टली आई लर्न दैट टू बी ए वर्किंग मैन मीन्स यू हैड टू बी अप एंड रेडी टू फेस द डे वॉट एवर एल्स मे हैपन टू यू. मीन्स इफ यू आर वर्किंग then you will have to be ready for each and every moment. यदि आप काम करते तो आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा. बी ऑलवेज रेडी, हमेशा क्या रहिए, तैयार है. बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज. होमवर्क, ट्यूशन, प्रेयर्स ऑल carried on. Means he continues his study, his tuitions, his prayer and also the work of delivering the newspaper. उसने न्यूज़पेपर बेचने के साथ साथ अपना होमवर्क भी किया, स्कूल भी जाता था, ट्यूशन भी अटेंड किया करता था और मस्जिद में वो जाके वो जो नमाज भी अदा किया करता था. बट द मद्रास धनुषकोडी मेल वुडंट वेट फॉर मी. बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम फॉर APJ अब्दुल कलाम दैट द ट्रेन Madras Dhanushkodi it didn't wait for
हिम, लेकिन जो ट्रेन थी जिसका नाम मद्रास धनुषकोडी था वो कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम का वेट नहीं किया करते थे। मीन्स सब्सक्राइबर ऑल्सो वेटेड, जो सब्सक्राइबर थे या जो रीडर्स थे वो भी एपीजे अब्दुल कलाम का इंतजार किया करते, लेकिन जो ट्रेन थी वो कभी इंतजार नहीं किया करती थी। आई हैड टू बी प्रेजेंट एज द स्टेशन एट द करेक्ट टाइम, मीन्स एपीजे अब्दुल कलाम ही हैड टू he had to arrive at the station at the correct time। एपीजे अब्दुल कलाम को सही समय पे मतलब स्टेशन पहुंचना है, मतलब ट्रेन आने से पहले उसको स्टेशन पे पहुंचना था, बिकॉज ही हैड टू कलेक्ट द न्यूज़पेपर, क्योंकि उनको न्यूज़पेपर कलेक्ट करना था। एंड एट द करेक्ट पॉइंट टू कैच द बंडल्स एज दे केम फ्लाइंग इन, एंड ही हैड टू स्टैंड एट द करेक्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर ही कुड कैच द न्यूज़पेपर बंडल्स फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और उसको उस स्टेशन पे खड़े होकर एक करेक्ट पोजीशन में उसको खड़ा होना पड़ता था, जहाँ से जो चलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर के बंडल्स फेंके जा रहे हैं वो उसको पकड़ सके। इट वॉज माई फर्स्ट ब्रस्ट विथ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीइंग टू इट दैट आई केप्ट माई वर्ड टू माई कजिन नो मैटर वॉट, मीन्स so in this way APJ Abdul Kalam, he was helping his cousin brother Shamsuddin and he was also helping his family in economical way। इस तरीके से उसने जो शमसुद्दीन को वचन दिया था कि भाई मैं आपकी इस न्यूज़पेपर डिलीवर करने में मदद करूँगा, वह अपने कजिन की मदद भी कर रहा था और अपनी फैमिली की आर्थिक स्थिति में भी वह अपना योगदान दे रहा था। It was also a most enjoyable time and I loved every moment of it, means APJ Abdul Kalam says that it was very enjoyable time for me and I enjoyed each and every moment of it। APJ Abdul Kalam कर कि जब मैं न्यूज़पेपर डिलीवर करता था तो मुझे उसको डिलीवर करने में बहुत आनंद आता था और मैंने इसके प्रत्येक क्षण का प्रत्येक पल का मैंने क्या किया, आनंद लिया। My mother often fretted at my taking up this additional work and that all it was taking on me, but I shook my head and smiled at her। And APJ Abdul Kalam, he smiled at her mother because he did not wanted to show her that he was very tired, he did not to do such type of work। और APJ अब्दुल कलाम जब अपनी माँ को देखते थे तो हमेशा हंसा करते थे। क्यों? वह हमेशा इसलिए हंसा करते थे ताकि उनके परिवार वालों को यह न लगे कि यह काम करना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में काम कर रहा है। लेकिन जो APJ अब्दुल कलाम की माँ थी वो जानते थे कि इतनी छोटी उम्र में क्या कर बहुत मेहनत कर रहा है, उसको काफ़ी थकावट भी लगती होगी। नोइंग दैट माई अर्निंग्स वर समहाउ हेल्पिंग अस ऑल, APJ अब्दुल कलाम ही वॉज हैप्पी, ही वॉज नॉट सैड। वाई ही वॉज हैप्पी? बिकॉज ही न्यू दैट ही वॉज हेल्पिंग हिज फैमिली, क्योंकि उसको मालूम था कि उसकी कमाई से उसके परिवार की मदद हो जा रही है। And that she was secretly proud of me for having taken on the role of working man at the age of 8। And APJ Abdul Kalam's mother, she was feeling proud on him because he was even only 8 years old, but he was helping his family in economical way, kept me going with a smile on my face। और जो APJ अब्दुल कलाम की मम्मी थी वो अपने मन के अंदर ही मतलब उनको अपने अंदर प्राउड हो रहा था कि उनका बेटा जो 8 साल का है और वो इस 8 साल की उम्र में अपने फैमिली की कंडीशन को समझ रहा है और अपने फैमिली की मदद कर रहा है। तो यहाँ पे आज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है एक्सप्लेन हो गया। ओके, थैंक यू।